دنیا کے لوگ صرف ظاہری موت دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگ صرف ظاہری موت دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان خاص ہو۔ جیسے سونا اگر آگ میں جل کر پاک ہوتا ہے۔ توبہ کی صدا میں خوش آمدید، میں آپ کا بھائی بابر مسیح آپ کے لیے حاضر ہوں۔ میری طرف سے بہت بہت سلام ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کی حفاظت و نگہبانی کرے، خداوند آپ کو ہر دکھ سے ہر کمی میں محفوظ رکھے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو کلام مقدس لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ یوں اس طرح سے ہے۔ حکمت کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیت تک خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جائے گا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، چلو آج کا کلام مقدس دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ آج کا کلام مقدس ہم کو کیا ہدایت بخشتا ہے اور خداوند نے آج کے کلام مقدس میں ہم کو کیا نصیحت بیان کی ہے۔ ہمارا آج کا ٹائٹل ہے راستکاری کا انجام زندگانی۔ پر راستکار کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بددیانتی سمجھا گیا، اور کہ ان کا ہم سے چلے جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں۔ اور گویا آدمیوں کے نزدیک انہوں نے دکھ اٹھائے تو بھی بقا ان کی پوری امید تھی، اور تھوڑی سی تعب کے بعد ان کو بڑا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ خدا نے انہیں آزمایا اور اپنے لائق پایا۔ اس نے ان کو سونے کی طرح بھٹی میں تپایا، اور ان کے امتحان کے وقت وہ بوسے میں چنگاریوں کی مانند دوڑ دوڑ کر چمکیں گے۔ وہ قوموں کی عدالت کریں گے اور امتوں پر حکمران ہوں گے، اور خداوند ابد تک ان پر مسلط ہوگا جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ وہ ان کو وفادار محسوس کریں گے اور اس کے وفادار محبت میں اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ فضل اور رحمت اس کے برگزیدوں کے واسطے ہے، اور وہ اپنے مقدسوں کی نگہبانی کرے گا۔ آج کا کلام مقدس پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر ہو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو کلام مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے، آج کا کلام مقدس اگر غور سے سنا ہوگا تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہمارا آج کا پیغام ہے راستکاروں کا انجام زندگانی۔ پر راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور غضب ان کو نہ چھوئے گا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اس کی تشریح آیت کی دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ایمان رکھنے والوں کے لیے تسلی ہے۔ خدا اپنے راست باز نیک بندوں کو اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھتا ہے۔ دنیا چاہے انہیں دکھ دے مگر خدا کے حضور وہ مضبوط ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت کے بعد بھی خدا کے لوگ زندہ اور پرامن رہتے ہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں۔ آج کا پیغام مس نہیں کرنا۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، جو بھی آج کا پیغام بہن بھائی ویڈیو سننے کے لیے آئے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کا پیغام مس نہ کرے، لازمی سنیں اور خداوند کے کلام کو جانیں۔ میں نہیں یہ بات کر رہا، آپ کو کلام کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، خدا ہم پر کبھی بھی مہربان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کو گناہوں سے رہائی بخش سکتا ہے، ہم کو اپنے ایمان میں مضبوطی عطا کرنے کی ہمت اور طاقت دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز بہنوں، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ یہ خداوند نے کہا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، مگر جو میرے کلام کو سنے گا، اس کی باتوں پر عمل کرے گا، میں اس کی بھی باتوں پر عمل کروں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولا کریں، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں دوسرے بہنوں بھائیوں تک، تاکہ وہ بھی آج
के कलाम मुकद्दस से बरकत पाएं और आप भी बरकत पाएं। तो चलो कलाम मुकद्दस की दूसरी आयत देखते हैं। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बददियानती समझा गया, मगर हकीकत में रास्तबाज के लिए मौत नया आगाज है। क्या खूबसूरत बात है, क्या ही खूबसूरत बात है। मगर हकीकत में रास्तबाज के लिए मौत नया आगाज है, वो रूहानी जिंदगी में दाखिल होता है। क्या खूबसूरत पैगाम है मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों। आज का जो कलाम मुकद्दस आपकी रग रग में उतरेगा, मेरा खुदावंद पर भरोसा है, जो भी आज के कलाम मुकद्दस को सुनेगा उसकी रग रग में उतरेगा आज का कलाम। खुदावंद इस वसीले से आपकी जिंदगियों को जरूर तब्दील करेगा। आज के कलाम मुकद्दस से जरूर आप अपनी जिंदगियां तब्दील करेंगे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस की तीसरी आयत को देखते हैं। और के उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में है। नेक लोग जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो दुनिया वाले समझते हैं कि वो तबाह हो गए, लेकिन खुदा के नजदीक वो अमन और आराम में होते हैं। खुदा के साथ उनकी रूह आराम करती है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जान लो आज के कलाम मुकद्दस को, आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है। आज के कलाम मुकद्दस को आप अच्छी तरह से गौर से सुनेंगे तो आपकी वाकई जिंदगी तब्दील हो सकती है। खुदावंद आप पर रहम कर सकता है, खुदावंद आपको फजल अता फरमा सकता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस आप अगर गौर से सुनेंगे तो, और गोया आदमियों के नजदीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी। बका उनकी पूरी उम्मीद थी। दुनिया में वो तकलीफें, जुल्म और गम सहते हैं, मगर वो हमेशा की जिंदगी की उम्मीद रखते हैं। यही ईमान उन्हें मजबूत रखता है कि एक दिन खुदा उन्हें जलाल देगा, एक दिन खुदा उन्हें जलाल देगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस की बातों को आज गौर से सुने। आपसे बार बार मैं दरख्वास्त करता हूं, ये दिल को छू जाने वाली बातें हैं, आपकी जिंदगी तब्दील करने वाली बातें हैं। तो कलाम मुकद्दस की 5वीं आयत को देखते हैं। और थोड़ी सी ताइब के बाद उनको बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। ये है रास्तकारी का अंजाम जिंदगानी। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये है रास्तकारी का अंजाम जिंदगानी। ये खुदावंद आपको जिंदगी बख्शने वाला है, लेकिन बड़ी बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और उनको अपने लिए मकबूल पाया। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं। इसको गौर से सुन ले भाइयों बहनों। कलाम मुकद्दस की 6वीं आयत को देखते हैं। उसने उनको सोने की तरह भट्टी में तपाया और उनको सोख्तनी कुर्बानी की मनंद कबूल किया। सोख्तनी कुर्बानी की मनंद कबूल किया। खुदा अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनका ईमान खास हो। जैसे सोना अगर आग में जलकर पाक होता है, वैसे ही नेक लोग दुखों में और ज्यादा कीमती बन जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या पैगाम है खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत पैगाम है। आज का कलाम मुकद्दस पुरसकून जिंदगी देने वाला है। अगर आप इसको अपने अंदर महसूस करेंगे तो आपकी जिंदगी वाकई इससे तब्दील होगी। और उनके इम्तिहान के वक्त वो बूसे में चिंगारियों की मनंद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। उनका ईमान आग में तपे हुए सोने की तरह पाक होता है। खुदा ऐसे ईमान को कबूल करता है जैसे कोई खुशबूदार कुर्बानी। क़यामत जाम के दिन नेक लोग रोशनी की तरह चमकेंगे और
उनका ईमान और अमल खुदा के जलाल को ज़ाहिर करेगा। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे और खुदावंद अबद तक उन पर मुसल्लत होगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, वाकया ही जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, अगर किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में भी हों तो फिर भी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तप जाते हैं, आजमाए जाते हैं, मगर कभी भी अपने ईमान से और ईमाल से पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं जान जाती है तो जाए, मगर हमारा ईमान ना जाए, हमारे अमाल ना जाए। यही हमारी जिंदगी का भी असूल होना चाहिए। जान जाती है तो जाए, हमारा ईमान नहीं जाना चाहिए, हमारे अमाल नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अमाल हमारे कलाम मुकद्दस पर जब होंगे तो हमारे अमाल नहीं जाएंगे। हमको खुदावंद अपनी रहनुमाई अता करेगा। ये खुदा के बादशाही वादे की निशानी है। जो खुदा के वफादार रहते हैं वो एक दिन उसके साथ बादशाही करेंगे। ये अबदी अंजाम है। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसकी वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगाहबानी करेगा। ईमान और भरोसा रखने वाले दानिशमंद कहलाते हैं। वो खुदा की मोहब्बत में मजबूत रहते हैं और खुदा उन पर रहम और बरकत करता है। आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस से हम सब बरकत पाएं। खुदावंद हमारी हिफाजत करे, निगाहबानी करे। आज के कलाम मुकद्दस से हमारी जिंदगियां तब्दील हों। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, मेरा तवक्कल है उस खुदावंद पर कि खुदावंद इस कलाम मुकद्दस के जरिए जरूर अपनी रहमत करेगा। जो इसको अपने अंदर महसूस करेगा, जो अपनी रूह के जरिए इसको संजीदगी से लेगा, खुदावंद उसको जरूर रहनुमाई अता करेगा और खुदावंद उसको जरूर बरकत अता करेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आज का कलाम मुकद्दस जरूर गौर से सुनना और गौर से सुनकर फिर मुझको कमेंट में जवाब भी देना है कि आपको आज का कलाम मुकद्दस कैसा लगा है, आपने आज के कलाम मुकद्दस में क्या सीखा है और क्या पाया है। इसका जवाब लाजमी मुझको देना। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको अपनी निगाहबानी और हिफाजत में रखें, खुदा आपको रहती दुनिया तक सलामत रखें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। और इस वीडियो पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर लाजमी करें। आप सबसे ये दरख्वास्त है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।